Hi everyone. Deep has joined, and I'll let Deep handle the meeting now, and he will be basically guiding you for basically master's programs or master's admissions in Germany. Along with that, he will also be able to answer your questions if you have any after his talk. So, Deep, please continue. Thanks for joining again. Okay, thank you so much. Hi everyone, I am Deep. Currently, I am pursuing my master's in intelligent manufacturing from Clausthal University of Technology. I recently came in Germany. Probably you know it, that is winter intake, October 2024. So yeah, please feel free to ask your queries and I will respond to best of my abilities. Okay, so Deep, to start with, I want you to briefly tell the process. Let's say I'm blank completely. Just briefly tell what milestones should I achieve by now if I want to take admission in nearest intake. So you have to answer first question that whether you want to apply for summer intake or winter intake. Summer intake usually starts in April 2025 and winter intake starts in September, October 2025. So if it's clear, then we can proceed to the next step. Yeah. So just to mention, let's say the intake that starts from April, then basically I have to apply before April, right? Then what is the No, application no, no, period no. of that? Deadline to apply for summer semester is Hmm. January 15th. Hmm. And in most universities, deadlines are over, I guess. Yeah. Pretty so, yeah. You have very limited options for summer semester. And in Yeah, winter that intake, starts from April. yes, that starts from April, summer semester. Yeah, but Um, irrespective to that, my all of my students, I am pretty much sure they are targeting the winter intake, basically the same as yours, I guess. okay, okay. Yeah, yeah. So you can keep in mind that everyone here is basically targeting the winter intake. No worries then. Deadlines are far from over, and universities have started accepting the applications for the winter semester. So, first of all, you need to figure out which program you want to study, and And alongside, you can program apply for selections. the APS certificate as well. Yeah. So just to stop you here, so it's fine, right? We can keep the session interactive, Deep, right? So that Yes, at exactly. That's yeah, why yeah, yeah, I kept my introduction very quick and short yeah, that yeah. uh, Great. students can share their questions and I can answer them. So Yeah, it yeah. will be Maybe I can continue to ask questions for now, and then I'll let students to discuss with you. Okay. So my quick perfect. question again here is the sole website from where I can get to know about different programs is Dart website, right? The one that I shared with you previously, or you shared with me previously. Okay. There are a few other websites as well. You can have a look at it. Yeah. mygermanuniversity.com and few Hmm. others as well. More or less Okay. information is same as that. So I don't think Yeah. it will make much difference. Yeah, great. So, because the Dart website has complete details of the program, like they have a program catalog. Along with that, each program has a different description of itself. So that's why I prefer Dart. I mean, they have Yes, exactly. deadlines as well mentioned there, right? So Complete details are mentioned on the DART website. So that's yeah, why I don't think you have to check any other website as such, particularly for Germany. super. And what about the APS certificate? It's It's like just, clear process, right? Like you just go to the yes, APS website and apply for. mandatory. Yes, it's a simple process and a mandatory requirement to apply. Okay, so even if let's say I apply for the universities that are not asking for APS document or certificate at the time of application, but still is required, right, for later purposes. Later purposes, yes, it's required.
but I haven't heard any university as of now that don't require APS certificate while applying for the master's program. So So everyone yes, asks. it is more, yes, it's more or less a mandatory requirement, just like your IELTS test score Mm, or transcripts or CV. yeah. Okay. Treat it that way And only. yeah, I get it. So you have to like there's no escape from it. Yeah, basically, if you have made your mind today, then to go to Germany, then it's better to get APS as soon as possible, right? Right. Okay, great. The other thing that I want to ask Deep is like, so there are three modes that I personally have identified. There are like modes of applications, I would say. First is university only applications. Second is university plus UniAssist based applications. And third is only UniAssist applications. So, how do you differentiate between them? So, as the definition is pretty clear, some universities accept applications through their website only. So, Mm, everything about the application process is mentioned on their website in mm, first case. In a second case, you have to submit the VPD, which you will get it from UniAssist after submitting the basic documents such as your result, mark sheets, and transcripts and IELTS test score, and you can submit the VPD. You get it from the UniAssist along with the other applications on university portal. And in third case, you have to directly apply on the UniAssist, and documents are mentioned on the university's website. So yeah, pretty much these three are the different application processes. okay, and there's no need to send physical documents anywhere, right? No, in a majority of the cases, university don't require physical documents while Mm, applying for the program. Once you are yeah, admitted for the program and for enrollment purpose, they can demand physical document yeah, or yeah. we can say notarized copy. I see, I see. Last question from my side now is so how many applications should I consider to submit? Basically, considering the fact that I'm not applying anywhere in the world, only Germany, because let's say I have spent 18,000 for APS, then 18,000 for IELTS, and other logistical things, and I'm only applying in Germany. Considering that, how many applications should I submit in Germany to be on safe side? So, so basically, as far as my understanding goes, you have to clearly and honestly answer one question. What do I want to study? Mm, After that, rest all can be taken care of. And I see. everything from university shortlisting to number of applications to Yeah. deadlines to tuition fees, everything else will follow. Mm. But still, if you can give me a ballpark number. Just ballpark number, I guess if your research is pretty strong enough about Mm. your program and university, then 5 to 7 applications are more than enough Oh, I see. I see. in public Excellent. university. Yeah, exactly. I mean, everyone here are basically considering public universities only, I believe. And they have started charging fees as well because the craze is very high for the German Yeah, public universities as yeah, well. yeah. That I got to know. But there are still not many universities that have introduced fees. I think only few A few public universities. universities, Yeah, very few yeah, universities, we can name them on fingertips, and getting yeah, yeah, them is exactly. also actually very tough Yeah, now. exactly. Yeah, exactly. Cool then. That was all from my side. So now I make this session open for other students to ask, and you can go one by one and ask Deep. Thank you. Perfect. Feel free to ask your doubts. हाय डीप That is, आई एम अर्पण मेरे को ये hello. पूछना था कि मैंने एपीएस के लिए अप्लाई कर दिया दिसंबर में ही 1 महीना हो गया होगा ऑलमोस्ट बट अभी तक Mhm. उधर से कोई अपडेट नहीं आई है जैसे कि प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा क्या चीजें है तो मतलब कितना टाइम और लग सकता है मैक्स टू मैक्स या फिर कौन सा राइट मंथ होता अप्लाई करने के लिए मैंने दिसंबर में किया है, वो मतलब टू बी ऑन द सेफ साइड वो दिसंबर में किया ठीक है या फिर लेट वेट ना हो जाए क्या चीज है क्योंकि वहां से कोई मेरे को रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा उधर से कोई अभी। नहीं सुनो अर्पण, वहां से उनकी तरफ से अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है या फिर कोई उनको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए तो ही उनको उनकी तरफ से आपको मेल आएगा
वरना आपका एपीएस सर्टिफिकेट जब रेडी हो जाएगा तब आपको कंफर्मेशन मेल आएगा। और जनरली अभी डेडलाइंस आई गेस 1.5 या 2 महीने की है, मतलब टाइम लाइन सॉरी, कि 1.5 से 2 महीने के अंदर एपीएस सर्टिफिकेट जनरली लोगों का आ जाता है। सो आई गेस तुमने दिसंबर में किया हुआ है और अभी जनवरी स्टार्ट हुआ है, तो आई होप कि बाय जनवरी एंड यू गेट योर एपीएस सर्टिफिकेट। ओके बाकी ओके। उसमें बहुत चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इफ एप्लीकेशन इज okay, then I don't think there is any reason you एंड won't get it. सेकेंडली आई एम प्लानिंग टू परस्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स फ्रॉम जर्मनी पब्लिक यूनिवर्सिटी। तो वहाँ मेरे को ये चीज़ जाननी थी, वहाँ पे एक तो मतलब अभी जॉब सिनेरियो क्या है, एज आईटी सेक्टर कैसा है वहाँ पे, क्या चीज़ें हैं, उसका कोई आपको नॉलेज हो उसके रिगार्डिंग। Actually, I am from mechanical engineering background, so I don't have any direct insight about the IT field or AI field as such. But I can say job market is tough for part-time jobs as well as full-time jobs as well as internship. And it's not the case with Germany only. It's across Europe, US, and pretty much India as well. So yeah, economic slowdown is there, but with persistence and enough skills, you can get it. So it's not a much worry, I guess, but you have to be very clear that I want to study this particular subject. I am very much emphasizing on this topic because it's very important that तुमको पढ़ना क्या अच्छा लगता है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। अगर उसमें आपने कोई प्रोग्राम सिलेक्ट किया है और अगर उसमें आपको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, देन नथिंग इज वर्स देन। और थर्ड चीज, जैसे कि अभी हम हमारा वहाँ पे अगर एडमिशन हो जाता है, तो मतलब उसके लिए जैसे एडमिशन से पहले वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है, वो मैटर करता है, क्योंकि मेरे को अभी जैसे मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ प्रेजेंटली, मेरे को 7-8 महीने हो गए हैं, एज अ एआई डेवलपर ही कर रहा हूँ मैं। तो मतलब उसका क्या आगे, मतलब आगे एडवांटेज है कि वर्क एक्सपीरियंस अगर हम फ्रेशर भी है, मैं सीधा वहाँ पे एडमिशन मिल जाता, तो उसका कोई डिसएडवांटेज तो नहीं होता ना, कि कोई जैसे और कोई बंदे भी आते हैं। डिसएडवांटेज नहीं, कोई डिसएडवांटेज नहीं है। अगर आप एज अ फ्रेशर आ रहे हो, एज अ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल आ रहे हो, कोई डिसएडवांटेज नहीं है और किसी में एडवांटेज भी नहीं। It all ओके। depends on your experience, previous experience, and particular skills required for that job profile. और अगर आप जो फील्ड में आप मास्टर्स करना चाहते हो उसी फील्ड में आप इंटर्नशिप करके आ रहे हो, then it will be an added benefit. Nothing wrong with it. और जैसे मेरी प्रोफाइल जो बीसीए प्लस एमसीए वाली है, तो जैसे मैंने कहीं कहीं देखा है, जैसे फर्स्टली बीटेक वालों को प्रीफर करते हैं। तो जैसे मैंने सेफ साइड के लिए मैं सही आंसर को ही बोला, मैं 12 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूंगा। तो मतलब ऐसा तो नहीं, मेरे को कोई ज्यादा प्रॉब्लम आएगी एडमिशन में, क्योंकि बीसीए प्लस एमसीए प्रोफाइल है। कभी कभी क्रेडिट का हाँ इशू पड़ता है, लेकिन मेरे वैसे पूरे हो रखे हैं वो, हाँ, कोई फिर दिक्कत नहीं हो। फिर ठीक है। आई डोंट थिंक सो देयर विल बी एनी प्रॉब्लम। जब तक तुम्हारे क्रेडिट पॉइंट सही है, आई डोंट थिंक यू क्योंकि विल मेरे फेस एनी प्रॉब्लम। एंड बीसीए और संयम सर एमसीए के इज मिला देयर टू के, गाइड यू एज वेल अबाउट क्रेडिट पॉइंट्स। एज पर माई रिसर्च, जो मैंने डार्ट मैंने चेक किया था ना, तो मिनिमम 210 या 180 चाहिए, और मैंने दोनों डिग्री के मिला के 230 बैठे हैं टोटल। अरे कैलकुलेशन ऐसे नहीं होगा। पर्टिकुलर तुम जो प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो उनके जो कोर मॉड्यूल्स है उन्होंने यूनिवर्सिटी ने या तो स्पेसिफाई किया होगा कि भाई हमें हम्म पर्टिकुलर मॉड्यूल के इतने क्रेडिट पॉइंट्स चाहिए आपके बैचलर्स में से, तो वो मैच हम्म होने चाहिए। अगर लेट से उनके 3-4 मॉड्यूल के क्रेडिट पॉइंट्स 50 या 60 है और वो तुम्हारे मैच हो रहे हैं, तो इट डजेंट मैटर कि भाई तुमने बीसीए किया हुआ है या एमसीए किया हुआ है या दोनों किया हुआ है। हम्म, ठीक है। आई थिंक दीप वो लोग मैच करते हैं राइट, कि उनकी बैचलर्स में जो कोर्सेज हैं वो तुमने तुम्हारी बैचलर्स में किए या नहीं किए, राइट? ऐसा कुछ है शायद स्केल, राइट? एंड वो Courses, they don't match courses, they match the credit points. Let's say उन्होंने राइट। बोला हुआ है कि भाई फॉर आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अगर उनकी रिक्वायरमेंट है कि भाई वेल्डिंग टेक्नोलॉजी में उनको 6 ECTS चाहिए और आपके बैचलर्स में दो सब्जेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज 1 एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज 2, और उन दोनों के मिलाकर अगर आपकी 10 क्रेडिट पॉइंट्स हो रहे हैं, देन इट्स परफेक्टली ऑल राइट। फिर कोई उनको राइट। प्रॉब्लम नहीं। राइट। ओके ओके।
Any other queries, guys? ठीक है then if there are no queries then let's call it off maybe. And that was quick. No, sir. No, I was sir. not sure. Oh, एक Abhinav, क्वेश्चन. you have? Okay, हाँ, Yeah. please go ahead, Abhinav. लाइक रिगार्डिंग दिस कोर्स स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जैसे कि आपने कहा कि मतलब फॉर मैथ्स सपोज कहीं पे अगर 15 ECTS वो मांगते हैं बट मेरा थोड़ा कम होता है, सो लाइक एम आई अलाउड टू ऐड पार्शियल क्रेडिट्स फ्रॉम नॉन मैथ कोर्सेज की, जैसे कि मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स से भी थोड़ा ऐड कर दिया, या फिर नहीं 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 नहीं, नॉन मैथ कोर्सेज के आप क्रेडिट पॉइंट्स ऐड नहीं कर सकते, और कितना कम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेट से अगर उनकी रिक्वायरमेंट 15 है और आपके क्रेडिट पॉइंट्स 5 है, तो आई डोंट थिंक इट्स वर्थ टू अप्लाई, क्योंकि चांसेस बिल्कुल ही नहीं, वहीं पर अच्छा, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। अगर मतलब वो उनकी इसको रिक्वायरमेंट स्ट्रिक्ट 15 है और हाँ आपके क्रेडिट पॉइंट्स 12 या 13 है, 2 या 3 क्रेडिट पॉइंट्स मिसिंग है, और हाँ उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि भाई वी विल लुक एट द ओवरऑल क्रेडिट पॉइंट्स एंड नॉट पर्टिकुलर मॉड्यूल्स क्रेडिट हाँ, पॉइंट्स, एंड आई गेस फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, मतलब वो उस चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली देखते हैं। हम्म, अच्छा, मतलब वही इशू स्वीडन में हुआ है कि बहुत लोगों का मतलब कहीं कहीं 30। वही मेन क्राइटेरिया, उनका हाँ सिलेक्शन क्राइटेरिया ही वही है ना। उनको ना तो हाँ तुम्हारा जीआरई चाहिए, ना तुम्हारा हाँ जीमेट चाहिए। इंग्लिश हाँ हाँ लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट भी काफी मतलब सिंपल है, राइट? हाँ तो फिर वो किस बेसिस पर आप लोग आपको एडमिशन दे, कुछ तो क्राइटेरिया उनका भी होना चाहिए ना। हाँ। और एक बात पूछनी है कि वहाँ लिविंग एक्सपेंसेस कितने, मतलब लिविंग अप्रोक्स। एक्सपेंसेस डिपेंड्स कि आपका लोकेशन कौन सा है। अगर आप छोटे सिटी में हो या फिर कोई बड़े सिटी के आउटस्कर्ट्स में आप रहते हो, तो आपके एक्सपेंसेस आई गेस 700 से 800 यूरोस की रेंज में होंगे। और अगर आप बड़े सिटीज में जाते हो, लेट्स से बर्लिन है, म्यूनिक है, फ्रैंकफर्ट है, हैम्बर्ग है, तो फिर ऑब्वियस है कि वो बड़े सिटीज है, तो वहां पर आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे ड्यू टू रेंट, अकोमोडेशन। सो वहां पर आपके एक्सपेंसेस 1000 यूरो से 1100 यूरोस की रेंज में आई गेस होंगे। करंटली मेरे एक्सपेंसेस, मैं पिछले 3 महीने से यहाँ पर हूँ और मेरा जो लोकेशन है वो बड़े सिटी के बाहर है, तो मेरा एक्सपेंसेस मोर और लेस ये 700 टू 800 यूरोस की रेंज में है। ओके। और अगर जर्मन लैंग्वेज का है, जैसे कि वहां पे आने से पहले किस लेवल तक हमें सीखनी पड़ेगी, मतलब कितनी नेसेसरी है? कितनी नेसेसरी है वो क्वेश्चन आपका होना ही नहीं चाहिए। अगर आपने यहाँ पर आने का सोचा हुआ है, तो हम्म। फिर आपको ये अंदर माइंड में रखना है कि भाई मैं जितनी जर्मन लैंग्वेज सीख कर जा सकता हूँ उतना मेरे लिए हम्म। बढ़िया। ओके। बेसिकली डिपेंड्स अपॉन योर सर्कमस्टांसेस कि भाई अगर आप वहां पर फुल टाइम जॉब कर रहे हो और साथ में एप्लीकेशन प्रोसेस भी चल रही है, तो आपके पास लैंग्वेज सीखने का ज्यादा टाइम नहीं होगा। लेकिन अभी आप बैचलर्स कर रहे हो, तो आई गेस फाइनल ईयर में हो, तो आपके पास टाइम है लैंग्वेज स्किल्स अपनी इंप्रूव करने का। और यहाँ तो पर आप आपको जितनी लैंग्वेज सीख कर आओगे उतना आपको बेनिफिट होने ही वाला है, फॉर श्योर है, गिवन है, कोई तो उसमें एनी सेकंड थॉट नहीं। एनी इंस्टीट्यूट यू कैन सजेस्ट मी टू लर्न जर्मन लैंग्वेज? I don't particularly know of any such institutes, but you can have a look at Language Pantheon from ओके ओके। it's based out of New Delhi, and they provide online as यस well यस, as offline coaching. ये इट्स नियर बाय माय हाउस, आई नो। Perfect, then you can have a trial session as well. ओके ओके ओके। Okay, friends, last call. If anyone have any questions, maybe please unmute and ask Yes, about I Germany. have. Yes, sir, I have. Okay, okay, great, Vipin. Please go. हाय दीप, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि वीपीडी के बारे में थोड़ा क्लियर कर सकते हो क्या और अच्छे से? या हाय विपिन, वीपीडी बेसिकली एक आपका प्री स्क्रीनिंग डॉक्यूमेंट है कि जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उनका वो लोग
यूनि असिस्ट वाले वेरीफाई करके आपको एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे, और हम्म, जिसमें आपका सीजीपीए या फिर जीपीए होगा आउट ऑफ 10, उनको वो कन्वर्ट करेंगे जर्मन जीपीए में, जो 5 के स्केल पर बेस्ड होता है। वो ओके। डॉक्यूमेंट के साथ बाकी कौन से डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को चाहिए, वो सभी एक साथ आप यूनिवर्सिटी को सबमिट कर सकते हो प्रोग्राम में अप्लाई करने के टाइम पर। तो ये डॉक्यूमेंट भी वीपीटी भी टाइम कंज्यूमिंग होता होगा फिर तो, लाइक एपीएस। वीपीडी आई गेस 4 to 6 वीक्स में मिल जाना चाहिए आपको। ये अफेक्ट करेगा क्या, जैसे किसी यूनिवर्सिटी का अगर एप्लीकेशन स्टार्ट है हम्म। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में, तो हम्म। और आई थिंक वीपीटी के साथ में आइल्स का स्कोर भी लगता है, साथ में एपीएस भी लगता है। यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए ना, उसमें तो जी जो जी। भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आपको फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, एक्चुअली मेरी लिस्ट में कुछ यूनिवर्सिटीज हैं ऐसे जहाँ पे वीपीटी रिक्वायर्ड है, और हम्म। उसमें से एक यूनिवर्सिटी ऐसा है जिसका एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा मार्च के सेकेंड वीक से, एंड उसमें वीपीटी रिक्वायर है। तो मैं ये सोच रहा था, अगर स्टार्टिंग में ही मैं वीपीटी के लिए करता हूँ तो ऐसा तो नहीं है मेरा डेडलाइन निकल जाए उस यूनिवर्सिटी का, तब तक मेरा वीपीटी क्लियर ना हो पाए, आ नहीं पाए मुझ अरे तक। लेकिन लेकिन तुम्हें पता है कि भाई तुम्हारी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन पोर्टल मिड ऑफ मार्च से ओपन होने वाली है, तो अभी वीपीडी के लिए अप्लाई कर दो ना, क्या प्रॉब्लम। एक्चुअली अभी एपीएस नहीं आया ना, एपीएस का वेट कर रहे हैं। ओके ओके, तो एपीएस उन्होंने बोला है कि भाई एपीएस भी वीपीडी के लिए चाहिए। एक अब बार मैंने यूनियासिस्ट की मैंने वेबसाइट मैंने पर क्रॉस देखकर चेक तो कंफर्म नहीं कर किया। लेना। ओके ओके, वो बेटर रहेगा, एक बार हाँ, क्योंकि चेक कर। एपीएस की रिक्वायरमेंट वीपीडी के लिए नहीं है, जहां तक मुझे पता है वो यूनिवर्सिटी वाले अलग से मांगते हैं। और एक सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था, अभी आपने बताया ये ईसीटीएस के बारे में बताया, ग्रेड क्रेडिट पॉइंट्स के बारे में। हम्म। क्रेडिट पॉइंट्स का मैंने कुछ देखा हुआ है वेबसाइट्स वगैरह में भी, मैंने कुछ पढ़ा हुआ है। एक क्रेडिट पॉइंट आप बता रहे हैं जैसे पर्टिकुलरली किसी मॉड्यूल के लिए वो लोग चेक करते हैं कि आपने वो कितना उसमें क्रेडिट अर्न किया है वो सब। बेसिकली आपने कोई प्रोग्राम शॉर्टलिस्ट किया, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स में सब मेंशन होगा कि भाई उनको सिर्फ बैचलर्स इन मैकेनिकल प्रोडक्शन या फिर एक्स वाई जेड हम्म। डोमेन चाहिए, या फिर उनको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, या फिर उनको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में मिनिमम क्रेडिट्स की रिक्वायरमेंट है, या फिर कोई हम्म भी बंदा विथ बैचलर्स डिग्री अप्लाई कर सकता है, या फिर हम्म। 180 सीटीएस चाहिए या 210 चाहिए। बेसिकली जो भी आप प्रोग्राम शॉर्टलिस्ट कर रहे हो उनके हाँ हाँ। रिक्वायरमेंट्स को आपको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू। है। ओके। Anybody have questions to ask? सर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। बोलो। हाँ, मैं ये पूछ रहा था दीप, एक्चुअली जैसे एप्लीकेशन करने की कितने दिन में ये कंफर्मेशन मिल जाएगा हमको कि हमारा मतलब शॉर्टलिस्ट हुआ है या नहीं, एक्सेप्टेंस हुआ हमारा या नहीं। बेसिकली पब्लिक यूनिवर्सिटीज 4 वीक्स से लेकर जनरली 8 वीक्स का टाइम लेती है आपको रिजल्ट बताने के लिए। दैट मीन्स अगर मार्च में एप्लीकेशन किया जाएगा तो जून तक कंफर्मेशन मिल जाएगा। नहीं, वो जो टाइमलाइन है वो काउंट कब होगी, जब आपकी यूनिवर्सिटी का जो एप्लीकेशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा उसके बाद से काउंट होगी। लेट से कि अगर ओके आपकी ओके 15 मार्च से आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस ओपन हो रही है और वो 30 अप्रैल तक है, तो ओके। 1 मई से आपको 4 वीक्स से 8 वीक्स या फिर इन सम केसेस 12 वीक्स का आपको टाइम लेकर चलना पड़ेगा। ओके ओके। एनी अदर क्वेरीज गाइस?
Okay, then if there are no queries, then let's call it off. Thank you so much, Deep, for your time. And maybe I'll call the session off. And everyone who have to discuss any personal questions, please WhatsApp me. I'll schedule a personal meeting again. Thank you so much. Bye bye. Good night.